چہرے پر، عبادت مار دی جائے گی واپس اس کے چہرے پر، اور دعا اثر ہرگز کسی کی بھی دعا کا ہو نہیں سکتا، اور کسی مسلک کا ہو میرا دعویٰ ہے شاہد، نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا، نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا۔ آئیے دوستوں، میں آپ کے روبرو آپ ہی کے گاؤں کے عالم دین حضرت مولانا عزت اللہ سالم شمسی سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اپنا تو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ۔ خطابت کے لیے کیا کہنا کہ اپنا تو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، ارے غیر کا تصور بھی دل میں لا نہیں سکتے، ایک خدا کے آگے ہی سر ہمارا جھکتا ہے، ہر کسی کے آگے ہم سر جھکا نہیں سکتے، ہر کسی کے آگے ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ بس ایک نظر سے وہ تیری قسمت بدل دے گا، بس ایک نظر سے وہ تیری قسمت بدل دے گا، غموں سے چھین کر تجھے خوشیوں میں پل دے گا، اور تو اپنے مسئلے سارے خدا پر چھوڑ کر بندے، کہ جس نے مشکلیں دی ہے وہی مشکل کا حل دے گا، کہ جس نے مشکلیں دی ہے وہی مشکل کا حل دے گا۔ اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں بچوں سے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں کھیل کود رہے ہیں، ان سے میں بڑے ہی اپنے احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائے تاکہ پروگرام کو شروع کیا جائے۔ عزت اللہ سالم شمسی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، اور نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے ایک فقط مسئلہ کلام، اور میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، اور بیان نقطہ توحید آ تو سکتا تھا، بیان نقطہ توحید آ تو سکتا تھا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ کے کاشگر، اور تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، اور لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک دینی محفل کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارا وجود بخشا ہے، سب سے پہلے پیغمبر اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس
دنیا کے اندر آتے ہیں، آج ہم اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کی اتباع کرنے والے، اسی نبی کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ جس نبی کے صدقے اور طفیل میں یہ جہان بنایا گیا، جس نبی کے صدقے اور طفیل میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول آئے، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، جس نبی کے صدقے اور طفیل میں اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پہاڑ اور ندی نالے بنائے، یہاں تک کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اسی نبی کے صدقے اور طفیل میں پیدا فرمایا، ہم سب کا وجود فرمایا۔ تو اب ہم سب کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم سب اسی نبی کی اتباع کریں، اسی نبی کی مان کر اس دنیا سے جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے چند دن کے لیے، یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ انسان چند دنوں کا مہمان ہے، یہاں پر آیا ہے اور آنے کے بعد اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے حقیقی دنیا کے اندر جانا ہے، جہاں سے دوبارہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر تو صرف اور صرف ہم سب اس دنیا کی اور اس زندگی کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہم سب کو مقصد اور اصول بھی بتا دیے کہ تم کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے، اگر اس دنیا کے اندر رہ کر کے تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو تم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا عبدا کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے ماننے والوں، اے میرے قدموں کے اوپر جان نچھاور کرنے والوں، اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بادشاہ بن کر کے پھرو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری غلام بن جائے، اگر تم چاہتے ہو سارے دنیا کی حکمرانی تمہارے ہاتھوں میں رہے، اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے، تو تم کو دو چیزیں ماننی پڑیں گی، تم کو دو چیزیں ماننی پڑیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر تم دنیا کے اندر کامیابی کامرانی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دو چیزیں ماننی پڑیں گی۔ ایک میرا طریقہ ہے، اگر تم نے میرے طریقے کو فالو کر لیا، اگر تم نے حقیقی طور پر میرے اسوے کے اوپر عمل کر لیا، قسم رب ذوالجلال کی ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا تمہاری غلام ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اگر قرآن مقدس کے اوپر تم نے عمل کر لیا، تو ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی دو چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، مگر کب کرتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ کب کرتے ہیں؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی قرآن خوانی کی دعوت دیتا ہے، تب ہم قرآن مقدس کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، پورے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر طاق بنا ہوا ہے، گھروں کے طاق کے اندر قرآن مقدس جزدان کے اندر سجایا ہوا رکھا ہوا ہے، پورے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، پورے گھر کی ستھرائی ہو رہی ہے، ایک طاق رکھا ہوا ہے، اس طاق کے اندر قرآن مقدس جزدان کے اندر سجایا ہوا رکھا ہوا ہے۔ کبھی ہمارے اندر کبھی ہمیں مہلت نہیں ملتی کہ ہم اس طاق کے اندر اس جزدان کو صاف کر دیں، اس قرآن مقدس کو صاف کریں۔ کبھی ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جزدان کو کھول کر کے دیکھیں قرآن مقدس کیسے رکھا ہوا ہے، کبھی مہلت نہیں ملتی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آج ہم قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگاتے تو آج جو ظالم حکومتیں ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں، وہ حکومتیں جیسا چاہتی ہیں اس طرف ہم کو لے کر کے
जाती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा तरीका हमारे अंदर दाखिल करती हैं, जैसा चाहती हैं वैसे तरीके हमारे अंदर पेश करती हैं, जो चाहती हैं वो करते हैं। आज हम उन्हीं के बताए हुए तरीके के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज हम कुरान के ऊपर अमल करते, आज हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ते और देखते कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या हमें सबक दिया था, क्या उसवा पेश किया था और क्या पता करके गए थे। आज हम अगर उसके ऊपर अमल करते तो कसम रब्बे जुल जलाल की ये हुकूमतें जो आज हमें सता रही हैं वैसी हुकूमतें हमारे सामने नजर न आती। आज हम चाहते हैं कि हजरत उमर फारूक जैसी हुकूमत हो, हम चाहते हैं कि उमर फारूक जैसी हुकूमत हो। जैसा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ करते थे वैसा इंसाफ करने वाला हमारा हुक्मरान हो नहीं हो सकता। और ये कब तक नहीं हो सकता? जब तक हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर हुक्मरान हमारे मुल्क का शरीफ और बेहतरीन अखलाक वाला नहीं आ सकता। आप चाहते हैं कि वैसा हुक्मरान हो, अरे वो कैसा हुक्मरान था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। अगर आप देखेंगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो आप देखेंगे कि उनकी हुकूमत चल रही होती है और जब उनको जरूरत आती है सोने की तो ईंट का सहारा लेकर सो जाया करते हैं। जब उनको जरूरत आती है कि कहीं पर कोई परेशान है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का अंधेरा नहीं देखते, फौरन जाकर के देखते हैं किस मुसीबत के अंदर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान थे। आज हम हुक्मरान भी तलाश करते हैं बेहतरीन अखलाक वाले, बेहतरीन किरदार वाले, वैसे हुक्मरान नहीं मिल सकते। वो आज का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहा था बिफर की मौजों पे हक परस्ती की साथी कश्ती का बाद था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, बड़ा मुबारक है नाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूबे में रवा दवा था। अरे उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा, किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। अरे हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में जो फंसा था, अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में जो फंसा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जरूरत है कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़े, बगैर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़े आज हम कामयाब नहीं हो सकते। बगैर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़े हुए हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप देखेंगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कैसे फैलाया है, कैसे दीन की दावत दी है। आपके सामने ताइफ का मंजर है, आपने ताइफ को देखा, आपने सुना कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जा रहे होते हैं, वहाँ के लोगों को दावत देने के लिए कि लोगों अल्लाह एक है, उसको तुम मान लो, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरी बात को मान लो, मेरी इत्तिबा कर लो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे, अल्लाह को एक अल्लाह मानोगे, एक खुदा मानोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। ताइफ वालों ने शरीर नौजवान बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और वो शराबी कबाबी नौजवान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे दौड़ा रहे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी पत्थरों की बारिश करते, कभी किसी और चीज की बारिश करते, यहाँ तक कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जिस्म से लहू लुहान हो गए। पूरा जिस्म इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून में सराबोर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से भीगे हुए हैं, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनके लिए बददुआ नहीं करते। फरिश्ते आते हैं, या रसूल अल्लाह आप अगर हुक्म दे और बताएं कि मैं इन पहाड़ों को हुक्म करूं और ये पहाड़ आपस में ताइफ वालों को मिला करके चटनी की तरह पीस करके रख दे। लेकिन इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस दुनिया के अंदर भेजा है और रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। अगर मैं आज इनके ऊपर जुल्म करूंगा, अगर इनके ऊपर ज्यादती करूंगा
हो सकता है इनकी बात, इनकी नस्लें मेरी इत्तिबा करें, मेरी पैरवी करें, मुझे माने, आज ये ईमान नहीं लाएंगे। हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर ईमान लाएं और जन्नत वाली हो जाएं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्स और सबक दिया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अखलाक और किरदार पेश किए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप देखेंगे कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक गली से हो रहा है, मस्जिद नबवी जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत है, कभी देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डालती है, कभी देखते हैं कि रास्ते में कांटे बिछाती है, क्यों? ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर बराबर जारी है। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी उसको बुरा भला नहीं कहते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, एक मर्तबा देखा कि उस बूढ़ी औरत ने ना ही तो मेरे ऊपर कांटे डाले, ना मेरे ऊपर कूड़ा और करकट डाला। कई मर्तबा ऐसा हुआ। बाद में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो आपको खबर मिली कि वो बूढ़ी औरत बीमार है। क्या खबर मिली? कि वो बूढ़ी औरत बीमार है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सहाबाए किराम भी साथ में हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के दरवाजे के ऊपर जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। बूढ़ी औरत की लड़की बाहर निकलती है और पूछती है, आप कौन? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूँ। वो घर अंदर दाखिल होती है, अम्मी से कहती है, अम्मी जान मोहम्मद आए हुए हैं। वो बूढ़ी औरत खड़बड़ा जाती है और ये जब सुनती है कि मोहम्मद मेरे दरवाजे के ऊपर आए हुए हैं, वो सोचती है, उसके दिल के अंदर तरह तरह की बातें उमंगने लगती हैं। शायद आज मुझे ये परेशान करने के लिए आए होंगे, शायद ये मुझे बददुआ देने के लिए आए होंगे, शायद ये मुझे तकलीफ देने के लिए आए होंगे। उस बूढ़ी औरत के पास इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारपाई के ऊपर लेटी हुई है। आप कहते हैं मैं आपकी अयादत के लिए आया हूं। वो बूढ़ी औरत चारपाई के ऊपर से उठती है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाती है और कहती है, या रसूलल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, मैंने आपके ऊपर कूड़ा डाला, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आपके अखलाक ऐसे होंगे, आपके किरदार ऐसे होंगे, आपका तरीका ऐसा होगा। वाकई आप आखिरी नबी हैं, वाकई आप सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, मैं आपकी इत्तिबा करती हूँ, मुझे माफ फरमा दीजिए। फौरन कदमों में गिरकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ती है और कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे किरदार पेश किए थे। तब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम तक ईमान आया। ऐसे ईमान नहीं मिला करता। ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको दे दिया बगैर मांगे, बगैर तलब किए हुए। और आप देखेंगे दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान से नहीं नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा एहसान और उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान से नवाजा है, हमको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। आज अगर हम उसकी इत्तिबा ना करें, आज हम अगर उसकी ना माने, तो आज हम किसकी मानेंगे और आज हम किसको फॉलो करेंगे और किसकी मान करके इस दुनिया से जाएंगे? जब मैदान महशर कायम होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आप जाएंगे, हम जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, मेरे पास मेरे अलावा मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, मेरे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खुदा के पास जाके तुम्हारी सिफारिश करूं। वो कहेंगे फला नबी के पास जाओ, फला नबी के पास हम जाएंगे। वो भी कहेंगे, वो अपने नफ्स के लिए पड़े होंगे, आज मैं परेशानी के अंदर हूँ, आज अल्लाह मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज होगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। हम दौड़ते हुए जाएंगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो देखेंगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे होंगे, सजदे में पड़े होंगे और कह रहे होंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता इश्फात शफ़ा, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जो मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे,
या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की पड़ी होगी, बाकी नबियों को अपनी उम्मत क्या सिर्फ उन्हीं की पड़ी हुई होगी। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जो नबी दुनिया में रह करके अपने उम्मती को ना भूला, जो नबी फुलसात के ऊपर अपने नबी अपनी उम्मत को ना भूलेगा, जो नबी मैदान महशर के अंदर अपनी उम्मत को ना भूलेगा, जो नबी आखिरत के अंदर अपनी उम्मत को ना भूलेगा, आज वही उम्मती अपनी नबी को दुनिया के अंदर भूला हुआ है। फिर कहता है हम नबी के गुलाम हैं, फिर कहता है हम नबी के मानने वाले हैं, फिर कहता है कि हम नबी की इत्तिबा करने वाले हैं। जब जरूरत आएगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामोज की हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। अरे कैसे कुर्बानी दे दोगे जब मुअज्जिन पुकारता रहता है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तुम्हारे कदम और बिस्तर के ऊपर तुम लेटे हुए होते हो, तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ सकते, तुम्हारे कदम और तुम्हारा जिस्म बिस्तर को नहीं छोड़ सकता। तुम क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर अपनी गर्दनें कुर्बान करोगे? क्या तुम उनके नाम पर अपनी जान नछावर करोगे? मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, अगर हम इस दुनिया के अंदर रह करके कामयाबी कामरानी चाहते हैं तो हमको उस नबी की माननी पड़ेगी और उसकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। बगैर माने कामयाब हो सकते? कोई कामयाब नहीं हो सकता। जो भी आया है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उसने माना है तो वो कामयाब है। आज यहूदी है, कोई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता है, कोई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता है, लेकिन अगर उसने आखिरी नबी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, उनके ऊपर ईमान नहीं लाया, तो चाहे जिस नबी को मानता हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे जितनी नमाजें पढ़ता हो, मगर ईमान लाना आखिरी नबी के ऊपर लाजिमी और जरूरी है। तो आप देखते होंगे यहूदियों ने भी बहुत अच्छा काम किया होगा, कभी उन्होंने हर काम किया, आज हम भी काम करते हैं। आज हमें देखिए, हम भी यहूदियों के तरीकों को अपना चुके हैं, हमारे अंदर बहुत से तरीके यहूदियों के नसरानियों के पाए जाते हैं, मगर हम सोचते हैं कि उनका ये तरीका नहीं है, मगर ये तरीका उन्हीं का है। आज देखिए हमारे बाल हैं, हमारे बाल छोटे बड़े हैं, ये भी तरीका उन्हीं का है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे रखो बड़े रखो, बाल बराबर के रखो। आज हम यहाँ के बाल हमारे छोटे हैं, यहाँ के बड़े हैं, कभी देखो हमारी दाढ़ी जो है एक मुट्ठी से कम है, ये क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। आज हमारे कदम कब्र के अंदर लटक रहे हैं, मगर फिर भी हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले हुए हैं। अरे जब हम जब हम कब्र के अंदर चले जाएंगे, मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो हम उनको जवाब क्या देंगे? मुनकर नकीर अगर कभी यही पूछ लिया, उन्होंने क्या पूछ लिया कि अगर तुम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, उनकी इत्तिबा करने वाले हो, तुम किसी चीज का जवाब ना दो, बस एक चीज का जवाब दे दो, तुम अपना चेहरा दिखा दो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता चेहरा है तुम्हारा, मैं तुम्हारा हिसाब नहीं करूंगा। तो क्या आज हम सब अपना चेहरा उनको दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कहने की बात यह है, हम आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, मेरा हक बहुत ज्यादा ये है कि मैं आप हजरात के सामने वो बातें रखूं जो मुझसे हो सके। अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाना और बताना मेरा फर्ज है। अगर मैं आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कल मैदान महशर में आप भी मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि इज्जतुल्लाह ने कभी हमें एक बात दिन की नहीं बताई थी। आज अगर हम बताएंगे नहीं तो आज कल कयामत के दिन आप पकड़ सकते हैं, और अगर हम बताएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हाँ बताया नहीं था। इसलिए मैं आप हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जितना भी हमसे हो सके, हम भी आप भी जितना हमसे हो सके, हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं, उनके बताए हुए तरीके के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारें। बगैर उनके तरीके को अपनाए हुए हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं, मगर आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। शायर कहता है, एक शेर है, शायर कहता है कि रसूल के हो तो किरदार मरकजी रखो, बने रहोगे जमाने का हाशिया कब तक, कभी अमल भी करो तुम तो जिंदगी संवरे, फकत सुनोगे हदीसों का तर्जमा कब तक, फकत सुनोगे हदीसों का तर्जमा कब तक। बस इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।